Welcome dear students. This lecture is based on class Reptilia. Reptilia include those animals which are also called as crawling animals, and these are the first true terrestrial animals, of course. But these animals are also found in water. They're aquatic. They may be semi-aquatic. They may also found on marshy places and also adopted for xeric mode of life. It means they're found in deserts as well. Okay. So these are versatile animals. They are first land animals. So let's have some important features of these animals. They are called crawling animals. Crawling animals. तो reptiles को आप कह सकते हो crawling animals, but they do bear limbs. Okay, they may use their limbs for walking, locomotion, of course, but crawl on their body. Okay, they are called crawling animals. As far as habitat is concerned, habitat shows great diversity as mentioned earlier. They may be aquatic, they may be semi-aquatic animals, aquatic, semi-aquatic, found on marshy places and maybe in desert. Okay, and they are first true terrestrial vertebrates. ये भी हमने आपको रिवील कर दिया, ठीक है. Habitat, crawling animals, of course. And now we will discuss about different body features, okay, so that you can get complete idea of class Reptilia. So these reptiles shows presence of ड्राई. इनका जो स्किन होता है पूरी तरह ड्राई होता है, नॉन ग्लैंड्यूलर होता है, ड्राई एंड नॉन ग्लैंड्यूलर स्किन. ठीक है. इनकी स्पेशलिटी है कि इनके स्किन के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के एक्सोस्केलेटन्स तो मिलेंगे बट ग्लैंड्स नहीं होंगे. ओके, एब्सेंस ऑफ ग्लैंड्स. वहां पे किसी भी टाइप का म्यूकस, म्यूसिलेज, इस तरह सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होगा. दैट्स हाउ स्किन इज कंप्लीटली ड्राई एंड नॉन ग्लैंड्यूलर स्किन. ठीक है, इनका टिपिकल फीचर आप कह सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन जो होता है, प्रेजेंस ऑफ स्केल्स. इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स रहेंगे, ठीक है, या फिर स्कूट्स हो सकते हैं, या फिर शील्ड हो सकता है. ओके, शील्ड, या फिर इसमें आप डर्मल प्लेट्स भी एज अ एग्जांपल ले सकते हो. प्रेजेंस ऑफ डर्मल प्लेट्स, स्केल्स, स्कूट्स, शील्ड्स, ओके, एक्सेट्रा. तो इनके बॉडी में अगर आप देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, एक स्पेशल exoskeleton feature दिखाई देगा. ओके, so that is what exoskeleton is. okay, so reptiles, crawling animals, then aquatic, semi-aquatic, marshy, desert, different habitat को ये follow करते हैं. और आप देख सकते हो reptile shows presence of dry non-glandular skin, very important feature, and presence of different types of exoskeleton structures like scales, scutes, shield और dermal, epidermal we can say plates. ये सारी चीजें इसमें हो सकती है. एज अ एग्जाम्पल आप सभी ले सकते हो. सो लेट्स फाइंड about some other features of these animals. Animals like lizard and snake. Animals like lizard and snakes. They shed their skin periodically. That is called ecdysis. So ये भी आपने important character याद रखना है. Ecdysis means shedding of skin periodically. ठीक है. स्नेक आपली स्किन रिमूव करतात, लिझर्ड आपली स्किन रिमूव करते डेड. ओके, तो ये होता है पीरियोडिक शेडिंग ऑफ स्किन कॉल्ड ecdysis और मोल्टिंग द स्किन. देन अबाउट देयर अपेंडेजेस, लोकोमोशन ऑफ दिस एनिमल occurs by their limbs. Locomotion occurs by their limbs, and limbs shows pentadactyl. Limb shows pentadactyl digits. Okay, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो डिजिट्स है ऑफकोर्स 5 होते हैं, 5 डिजिट्स, इजिली कहा गया pentadactyl. क्लॉड डिजिट्स, क्लॉड डिजिट्स, ऐसे शार्प नेल जैसे क्लॉ इसमें प्रोटेक्शन के लिए दिखाई देंगे. ओके, एंड ऑल्सो यूज इन प्रेडेशन ऑफकोर्स. सो पेंटाडैक्टिल क्लॉ डिजिट्स इसमें होते हैं जो इनके लोकोमोशन, हैंडलिंग वगैरह में हेल्प करेंगे. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन बाय देयर लिम्स. नाउ about their respiration. So how do they respire?
respiration occurs in any case by their lungs. रेप्टाइल्स कहीं भी रहते हो, चाहे पानी में रहते हो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे रहते हो, बट दे डू रेस्पायर बाय देयर लंग्स. तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लंग्स होते हैं. एनिमल चाहे किधर भी रहता हो, ठीक है, वेदर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक और डेजर्ट एनिमल, ठीक है, तो वो हमेशा लंग्स से रेस्पायर करेगा. रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली बाय देयर लंग्स. देन These are poikilothermic animals. Poikilothermic का मतलब क्या होता है? These animals are cold-blooded animals. ठीक है, ये animals कैसे होते हैं? Cold-blooded. It means that they have to change their body temperature as changes occur in their surrounding. ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है सराउंडिंग का तो इनको इनका टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा. ओके, और टेम्परेचर अगर बाहर का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इनको इनका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा correspondingly, and that's how they have to fluctuate their temperature. They are called poikilotherms. Okay, cold blooded animal बहुत ही important है, ये चीज आप याद रखिए. Then presence of tympanum. Tympanum act as their ear. ठीक है, तो उनका स्किन आपने देखा ड्राई है, नॉन ग्लैंडुलर है, शेड भी करते हैं कुछ मेंबर्स. और यहाँ पे आप देखिए उनके जो ईयर्स है, ये एक्सटर्नल ईयर उनमें नहीं होते हैं. That pinnae are found only in mammals, we know very well. तो इनमें इनका जो ईयर है वो रिप्रेजेंट होता है बाय ईयरड्रम टिम्पैनम. ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट देयर ईयर, तो यही इनके ईयर्स होते हैं. टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर. ओके, प्रेजेंस ऑफ टिम्पैनम, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रक्चर. देन अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, दे आर कार्निवोर्स. These animals are carnivorous. These are carnivorous animals. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखिए आप. एंड शोज कंप्लीट वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट सिस्टम होने का मतलब है कि इनके पास माउथ है, एनस है और ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान होता है. ठीक है, जनरल फीचर्स यहाँ मेंशन नहीं किए गए हैं, बट आप चाहो तो रिमाइंड भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो. राइट, इफ आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे बायोलैटरल सिमेट्री होगा. सारे रेप्टाइल्स में क्या होगा? बायोलैटरल सिमेट्री ऑफ कोर्स. और ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यूसिलोमिक होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं. आप देख सकते हो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन अबाउट देयर अदर फीचर्स, अदर सिस्टम्स. तो यहाँ पे वेल डेवलप आप देख सकते हो. कार्निवोरस डाइट के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनमें आपको दिखाई देंगे. देन इनका जो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप. सर्कुलेशन कैसे होगा? क्लोज टाइप. मीन्स ब्लड फ्लोज ऑलवेज थ्रू ब्लड वेसल्स. तो इनके बॉडी में जो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड वेसल्स थ्रू फ्लो होगा, और इसलिए आप कह सकते हो सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज टाइप. और उसमें ब्लड रेड होगा. ठीक है, ब्लड रेड, उसमें हीमोग्लोबिन होगा. राइट, और जो आरबीसीज होंगे, ठीक है, आरबीसीज बाय कॉन्वेक्स होंगे. आरबीसीज बाय कॉन्वेक्स. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. और वो न्यूक्लिएटेड भी होंगे. इनका जो हार्ट रहता है, रेप्टिल्स हार्ट, तो ये रेप्टिलियन हार्ट जो होता है कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड. पार्टीशंस उसमें आपको नहीं मिलेंगे. वेल सेपरेटेड ऑरिकल्स तो होते हैं, बट वेंट्रिकल्स में परफेक्ट सेपरेशन नहीं मिलता है. दैट्स हाउ देयर हार्ट इज नॉट परफेक्टली 4 चेम्बर्ड. ओके, तो इसको भी 3 चेम्बर्ड हार्ट ही आपने कहना है. 3 चेम्बर्ड हार्ट एज वेंट्रिकल्स आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड. ठीक है, ऑरिकल्स जो होते हैं ऊपर के हार्ट के चेम्बर आर सेपरेटेड. ऑरिकल्स में सेपरेशन होता है, बट ventricles are not perfectly isolated. तो आपने देखा कि इनके वेंट्रिकल्स ये पूरी तरह सेपरेट नहीं हो पाए हैं, बट कुछ मेंबर्स है जिसमें आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट दिखाई देगा, इवन दो दे आर रेप्टाइल्स. ठीक है, ऐसे है टर्टल और क्रोकोडाइल और टर्टल. इसमें आपको क्या दिखाई देगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट दिखाई देगा. ओके, सो सर्कुलेशन होता है क्लोज, आरबीसी होते हैं बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड, और हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, ये हार्ट 3 चेम्बर्ड है, आप कह सकते हो. देन अबाउट देयर नर्वस सिस्टम. तो अब बात करते हैं रेप्टाइल्स में नर्वस सिस्टम की.
ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ये वेल डेवलप कहा जाएगा क्योंकि इसमें ब्रेन है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, सारे नर्व्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। नर्वस सिस्टम, इसका मतलब वेल डेवलप नर्वस सिस्टम। Well developed nervous system is shown by reptiles. They show well developed olfactory and olfactory जो lobes होते हैं ना, olfactory lobes are well developed along with cerebellum. cerebellum जो होता है बैलेंस के लिए होता है और इक्विलिब्रियम के लिए होता है, ठीक है। Compared to amphibians, cerebellum and olfactory lobes mean sense of smell एंड बैलेंस, ठीक है। ये इनमें काफी बेटर होता है कंपेयर टू एम्फीबिया। तो एम्फीबियन से अगर आप कंपेयर करते हो तो इनमें आपको बेटर डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरेबेलम मिल जाएंगे इन रेप्टाइल्स। तो बात किया हमने यहाँ पे किस चीज का, सर्कुलेशन, उसी तरह डाइजेशन, उस तरह रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, द प्रोटेक्शन एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स से होता है जैसे कि किडनीज वगैरह से, ओके। और अब बात करेंगे इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें कैसे होता है, देखिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, तो ये भी काफी वेल डेवलप होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हो सेक्सुअल dimorphism is seen in these animals. Sexual dimorphism is found. मतलब मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, इसको कहना है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सेस आर सेपरेट, ओके। काफी इंपॉर्टेंट ये चीज। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स बनेंगे और वो फ्यूज होंगे इंटरनली, दैट्स हाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, राइट। और साथ में आप देखिए ये ओविपेरस होते हैं, मतलब एग ले करेंगे और इनके एग ये शेल्ड होंगे, दे ले शेल्ड एग, आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव कवरिंग है एग्स के ऊपर, दैट्स अ शेल्ड एग, क्लेडॉइक एग भी उसको कहा जाता है। और इन एनिमल्स में आपको कुछ मेंबर्स में जैसे कि वाइपर होता है, ये एक्सेप्शन के तौर पे आप ले सकते हो कि ये वाइविपेरस होता है, ठीक है। बाकी यहाँ आपने लिखा है एग लेइंग होते, रेप्टिलियन फीचर है एग ले करना, ओके। और यहाँ पे लिखा गया है वाइपर वाइविपेरस है, राइट। तो वो एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रखिए। वाइपर स्नेक जो एग ले नहीं करेगा, गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली लाइक मैमल्स। तो ये इसमें थोड़ा चेंज स्ट्राइकिंग फीचर है। इसी तरह इनमें आप देखिए थोड़ा लिटिल बिट पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है। पेरेंटल केयर इज सीन फॉर इनिशियल लाइफ। अर्लियर स्टेजेस में पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, जैसे कि फीमेल जो है स्नेक वो अपने जो एग्स है उसको इंक्यूबेट कराती है, वार्म अप कराती है और हैच होने तक उनका एक तरह से पूरी तरह केयर टेकिंग बिहेवियर यहाँ पे रेप्टाइल्स दिखाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखेंगे सो दैट यू कैन गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। एग्जांपल्स आपके फैमिलियर जैसे कि कोबरा, नाजा स्नेक जो होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिजार्ड, वॉल लिजार्ड सबके फैमिलियर है, ठीक है ना। टर्टल आप लिख सकते हो, उसी तरह क्रोकोडाइल लिखा जा सकता है और बहुत सारे फैमिलियर क्रॉलिंग मेंबर्स। तो इन एनिमल्स की स्पेशलिटी है कि वैसे तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं बट इनका जो स्किन है पूरी तरह ड्राई नॉन ग्लैंडुलर होता है, उस पर आपको एक्सोस्केलेटन दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स या फिर स्क्रूट्स या फिर शील्ड या फिर डर्मल प्लेट्स, ये सारी चीजें उसमें होती है। लिजार्ड, स्नेक, ये जो मेंबर्स है अपनी स्किन पीरियडिकली शेड भी करते हैं, जिसको आपने डाइसिस कहना है, ओके। फिर हमने सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था कि इनका वैसे तो सिमेट्री पूरी तरह बायलैटरल होता है, इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमिक होते हैं, राइट। तो वैसे तो इनके पास पेंटाडेक्टाइल आर्म या क्लॉ डिजिट्स सब कुछ मिलता है फॉर लोकोमोशन एंड प्रेडेशन, राइट, एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स। बट स्नेक्स आर लिम्बलेस, स्नेक्स के पास पैर नहीं होते, एज ए एक्सेप्शन आप याद रख सकते हो। स्नेक्स आर लिम्बलेस, दे क्रॉल ऑन द बेली, वो बेली में मसल्स की हेल्प से आपने क्रॉल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में वेल डेवलप नेचर तो कहा गया है बट दे आर कार्निवोरस, ओके। पूरी तरह कार्निवोरस एनिमल्स है, ये पूरी तरह डिपेंड करते हैं ऑन अदर एनिमल्स एज फॉर वी कैन से
फूड पर्पस, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है, जैसे कि एम्फीबियंस एंड सम मैमल्स ऑफ कोर्स, ठीक है ना, उनके फेवरेट डिशेस में आते हैं एज अ डाइट, राइट। थ्रू फूड चेन ये सारा एनर्जी ट्रांसफर चलता रहता है, राइट। देन रेस्पिरेशन ऑलवेज ऑकर बाय लंग्स। एनिमल किधर भी हो, चाहे पानी पे हो या टेरेस्ट्रियल एरिया में हो, वो हमेशा हमेशा ऑलवेज ओके दे रेस्पायर बाय देयर लंग्स। लंग्स ही उसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, राइट। फिर हमने कहा उनका सर्कुलेशन पूरी तरह क्लोज है, उसमें 3 चेम्बर्स कह सकते हैं कि आप हार्ट है, क्योंकि वेंट्रिकल्स परफेक्टली सेपरेटेड नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल टर्टल ऑल शोज 3 चेम्बर्ड हार्ट, ओके। बट सर्कुलेशन काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, क्लोज तरीके से होगा। आरबीसीज बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होंगे, ओके। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन भी होगा फॉर बेटर सर्कुलेशन, राइट। फिर हमने रिप्रोडक्शन का डिस्कशन किया था और नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में ऑल्फैक्टरी लोब और सेरेबेलम काफी डेवलप होते हैं, और इनका जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल होता है, सेक्स से सेपरेट होते हैं, एगलिंग होते हैं, राइट। वाइपर ये वाइविपेरस दिखाया गया था नेचर में, और थोड़ी बहुत पेरेंटल केयर ये एनिमल्स दिखाते हैं, ठीक। और लिजर्ड स्नेक जैसे एनिमल्स इक्डाइसिस पीरियडिक शेडिंग ऑफ देयर स्किन भी करते हैं। स्नेक्स लिम्बलेस है, ये आपने याद रखना है, ओके। तो ये था एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लास रेप्टिलिया। होप यू गॉट आइडिया अबाउट क्लास रेप्टिलिया, and if there is a question on class reptilia, then you can easily write points from this content, okay, and it is so helpful for entrance point of view as well, ठीक है। Thanks for watching.